Hello students, today we are going to understand control statements in Python, in which we will understand about simple if else, nested if else and elif header in Python. So let's start. So today we are going to do something new, that is regarding कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट को हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हल्का सा। देखिए जरा कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है, कैसे काम करते हैं। सो नाउ लिसन केयरफुली। कंट्रोल स्टेटमेंट बात करेंगे इफ एल्स की। सिंपल इफ में क्या होता है, इट इज अ सिंपल इफ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू control instruction on the basis of certain condition. So a simple if statement is a programming conditional statement that if proved true then it performs a function. If it is true then we will perform function or then it will perform operation. So we can easily say that if statement always depend on or use syntax. Single statement is there, you can see here. If condition is true then statement 1 will execute. It can be any function or operation. You can see the example here. First example you can see here. So first example of simple if is there. Write a program to find whether a number is negative or positive. Already we have done this program. If n is greater than 0, number is positive. If n is less than 0, number is negative. If n is equal to 0, number is neither positive nor negative. Okay. Now you can see another example here. This was the output of this program. Now I am just creating another example. So it is the if else statement. Like odd or even, we already done that program. Now we are creating if else statement here. So why we use if else? If else statement is used to execute both true part as well as false part. Okay, if the condition is true, if first condition is true, statement 1 will be executed. Okay, else statement 2 will execute. So here we can understand easily that it's already clear that if the condition 1 is true, it is clear, then statement 1 execute, else statement 2 execute. You can see the example also. Here you can see the example. First, write a program to find greater between two numbers. You can see user entered the value for A, user entered the value for B. If A greater than B, then condition and that first statement will execute. If first condition is false, then second statement will execute. You can see another example. First, this was the output. 5 greater than 4, that's why 5 is greater. It is simple to understand. अगर B की वैल्यू 18 है तो B is greater प्रिंट हो रहा है. Okay, you can see here. If A is greater than B, A is printed here. A is greater. You can see A is greater will be the output. Now, first you have to give attention to this else if statement, else if और elif statement. अब elif क्या करता है देखो जरा ध्यान से. The elif statement allows us to check multiple expression for the true and execute the block as soon as one condition evaluates true. तो क्या होता है, elif हम यूज करते हैं multiple conditions के लिए. If, elif, else, ये तीन चीजें हैं. देखो पहला क्या है, if. अगर पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. else if elif हो जाता है, तो वरना दूसरी वाली कंडीशन चेक करेंगे हम. और दूसरी वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो लास्ट स्टेटमेंट चलेगी ही चलेगी. ठीक है, तो देयर आर
basic thing. Okay, so in Elif you can see another example. Write a program to find whether the number is divisible by 7 or 5. So today we are going through this. Also this program is very important for us. Here you can see first condition is checked through if statement. If it is false, then second condition is checked through this statement. If it is also false, then third condition will be there. If all three conditions are false, then fourth condition, on the basis of fourth condition, the fourth statement automatically executes. Okay, now listen carefully. From the beginning, I just want to tell the basic thing. So we are just constructing a program on the basis of Elif condition. So Elif condition, suppose we have to create a program, write a program to find whether a number is divisible, divisible, divisible by, write a program whether that number is divisible by 9 or 5 or 9. You can write 5 or 9 or both. तो अब हम 5 और 9 की ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं. हमें एक ऐसा नंबर दो, हमें ये पता लगाना है कि नंबर 5 से और 9 से दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है या सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है या सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है या दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं. देखिए जरा. फर्स्ट वी विल आस्क द यूजर टू एंटर हिज वैल्यू. सपोज यूजर एंटर्ड enter any number. Suppose user entered any number. Okay, now if n modulus by 5 remainder is equal to 0, print number is divisible by n. Number is divisible by 5. Elif check whether number is divisible by 9 is equal to 0, remainder 0 or not, print number is divisible by 9 only. अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि दोनों से हो रहा है तो दो कंडीशन लगा रहे हैं. वी आर यूजिंग लॉजिकल एंड लॉजिकल और. सो फर्स्ट वी आर यूजिंग लॉजिकल एंड. इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड नंबर इज नॉट, नंबर मॉड्यूलस 9 not equal to 0. What it means? It means number should be divisible by 5 but not divisible by 9. Here also number should be divisible by 9 but not divisible by 5. मैं एक ही चीज समझाऊंगा, समझ में आ जाएगी धीरे धीरे. Now give attention to this. Now once again Elif यहां पर हमने ओनली क्यों लगाया कि ONLY. Now if n modulus 9 is equals to 0 and n modulus 5
is equals to 0, else int नंबर इज डिविजिबल बाय नन की जगह हम लिख सकते हैं नन ही सही है। चलो ओके, पहले प्रोग्राम को समझें। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में हुआ क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि देखें, पहले इसका आउटपुट यूज करके देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। So now we can see the output first. So from this, from the beginning of this, we can see n modulus 5, n modulus 9 not equal to 0. अब पहले इसका आउटपुट समझते हैं। सपोज एंटर एनी नंबर, कोई नंबर एंटर किया, सपोज मैंने एंटर किया 35 9 की टेबल में आता है नहीं, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ओनली। ओके, आउट ऑफ द। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, 81, suppose user entered 81, so number is divisible by 9 only. Now once again we will put entry whether the number is divisible by 5 or 9, both 45. You can see number is divisible by both, number is divisible by both 5 and 9, so we can put message 5 and 9 as well. Now you can see once again, suppose someone entered number 23. 23 is neither divisible by 5 nor 9. So number is divisible by none. Okay. So here you can see. So we are just working on this. Write a program to find whether the number is divisible by 5 or not, or both. Okay. Now here what happened? हम जरा इसको समझते हैं क्या हुआ यहाँ पर। हमने प्रोग्राम को समझना ज्यादा जरूरी है। प्रोग्राम को हमने बना लिया है, समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना आ जाएगा समझ। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव टेकन सम वेरिएबल्स। फर्स्ट वेरिएबल इज देयर लाइक दिस 1 3। असल में एक ही वेरिएबल है यहाँ पर, तो 2-3 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 वेरिएबल इज इनफ। नाउ यू कैन सी। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे हम इसमें डाटा एंट्री करेंगे। प्रोग्राम कैसे चल रहा है, सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा एंटर एनी नंबर। सपोज वी आर आल्सो प्रिंटिंग द सेम, एंटर एनी नंबर। Now students give attention what I want to say. अब सबसे पहले n की वैल्यू कितनी होगी, सपोज मान लो यूजर ने एंटर की 81, what user entered 81. Okay, now what is going here, if n modulus 5, अगर 81 को 5 से डिवाइड किया जाए क्या 0 आता है, नहीं आता। ओके, सिमिलरली अगर हम ये वाली कंडीशन गलत हो गई, अगर यहां पर एंड लगा है, लॉजिकल एंड लगा है, ये वाला लॉजिकल एंड, व्हाट इट मींस, यहां पर क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि पहली कंडीशन तो ट्रू होनी ही चाहिए, साथ में
दूसरी कंडीशन भी इसमें ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी ये इफ स्टेटमेंट ट्रू होगी और एग्जीक्यूट होगा ये वाला इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन गलत होती है तो दोनों की दोनों कंडीशन गलत मानी जाएंगी। ओके, सो मींस इट विल नॉट वर्क इफ एनी ऑफ देम इज नॉट ट्रू। ओके, अगर एक भी कंडीशन में से ट्रू नहीं होती है तो ये दोनों कंडीशंस को फॉल्स माना जाएगा। नाउ वी नो दैट 81 डिवाइड बाय n की वैल्यू क्या होगी 81। The value of n becomes 81. User entered 81. So 81 divided by 5, it is not equal to 0. So it will not work. Now 81 divided by 9, it is equal to 0. Yes. And 81 divided by 5 not equal to 0. देखो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, 81 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ n मॉडुलस 5, क्या n को 5 से डिवाइड करने पर भी 0 आता है? नहीं, 81 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 नहीं आएगा। ओके, सो इट मींस नहीं आएगा ना, 0 नहीं आएगा। और हमसे यही बोला गया, यहाँ पर क्या लिखा है इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, यानी 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा कंडीशन को ध्यान से देखना, n मॉडुलस 5 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आता है तो ये नहीं चलेगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो अभी क्या 0 नहीं आ रहा है तो कंडीशन क्या हो गई ट्रू, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल टू है। और इधर क्या नॉट इक्वल टू, यानी n को 5 से डिवाइड करने पर 0 नहीं आना चाहिए। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। n को 9 से डिवाइड करो तो 0 आना चाहिए, n को 5 से डिवाइड करो तो 0 नहीं आना चाहिए। कंडीशन ट्रू हो गई दोनों। ओके, तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ओनली। नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ओनली। ओके, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सपोज मान लो यूजर ने क्या किया, यूजर ने नंबर चेंज कर दिया, नंबर 85 मतलब 85 की जगह उसने कर दिया 45। व्हाट ही एंटर्ड 45, नंबर उसने 45 एंटर कर दिया। So number entered by the user is becoming 45 now. तो अब n की वैल्यू 5 से डिवाइड करो, 45 को 5 से डिवाइड करो, yes it is equal to 0, but n की वैल्यू 9 से डिवाइड करने पर not equal to 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, it means it will not work. Same here, n को 9 से डिवाइड करो 0 आ रहा है, but n को 5 से डिवाइड करने पर भी 0 आ रहा है, that's why it will not work, ये भी नहीं वर्क करेगा। Now here कंडीशन क्या है, is equals to, यहाँ पर भी is equals to दिया हुआ है, it means अगर n को 9 से डिवाइड करो तो 0 आना चाहिए रिमाइंडर, yes कंडीशन ट्रू। n को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, कंडीशन ट्रू। it means number is divisible by both, so 45 is divisible by both। नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, अगर मान लो किसी ने नंबर दिया है 451 ना 9 से डिवाइड होता, ना 451 ना 9 से डिवाइड होता, ना 3 से डिवाइड होता, ना 5 से डिवाइड होता। तो कहने का मतलब है ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी। अगर कहीं भी तीनों कंडीशन फॉल्स है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, तो चलेगा क्या, एल्स चलेगा। अगर तीनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो एंड में एल्स चलेगा। तो क्या प्रिंट होगा मैसेज, नंबर इज डिविजिबल बाय नन, नंबर इज डिविजिबल बाय नन। व्हाट विल बी द आउटपुट, नंबर इज डिविजिबल बाय नन।
ठीक है, सो नंबर इज डिविजिबल बाय नन विल बी प्रिंटेड हियर। नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया कैसे आउटपुट आया? एक बार हम इसको चला के भी देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर किसी ने 451 एंटर कर दिया नंबर इज डिविजिबल बाय नन आएगा, किसी ने 45 एंटर कर दिया नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ आएगा, किसी ने अगर 81 सेट कर दिया तो नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ओनली आएगा, और नंबर अगर 35 कर दिया किसी ने तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ओनली आएगा। तो ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आउटपुट है जो आपको दिख रहा है। तो किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, यू कैन आस्क। इफ एनीवन हैविंग डाउट यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट है? हाँ पूछिए, डाउट है तो पूछिए। Sir, I have joined a little bit late, sir. Can you explain what is the use of alif? Alif is used to compare multiple condition. Okay, it is a statement when we used to compare, when we required to compare multiple statement. When first statement is false, suppose मान लो पहली कंडीशन false हो जाती है, तब हम एलिफ लगाकर दूसरी कंडीशन को कंपेयर करा सकते हैं, और दूसरी भी कंपेयर कर गलत आती है, फॉल्स होती है, तो तीसरी कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। सो एट द एंड अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो एल्स एग्जीक्यूट होता है। आखिर में कौन सी चीज एग्जीक्यूट होती है? एल्स। अगर एक भी इन ऊपर की तीनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो लास्ट में एक स्टेटमेंट है वो चलेगी। देखो समझो पहले, अगर इफ इनमें से इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो केवल वही चलेगी। सपोज मान लो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो यही चलेगी। एक एग्जांपल और लेते हैं फॉर क्लियरिंग द कंफ्यूजन रिगार्डिंग मल्टीपल कंडीशंस। पहले समझे, सिंपल बनाऊंगा प्रोग्राम, बहुत ही इजी। तो देखे जरा कौन सा प्रोग्राम बनाऊंगा, देखे। सपोज देखे जरा, मान लो कोई हम यूजर से ऐसा प्रोग्राम बनवाते हैं, यूजर जैसे मान लो 1 एंटर करे तो 1 प्रिंट हो जाए, 2 एंटर करे तो 2 प्रिंट हो जाए, 1 to 9 के लिए हम ऐसा कुछ करते हैं सिंपल सा। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर in words from between 0 to 9, between 0 to 9, ध्यान से सुनना, देखना, 0 to 9, 0 to 9, 9 को मैं न्यूमरिक कर देता हूँ, 0 को भी न्यूमरिक कर रहा हूँ। प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल सा है, देखें जरा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर इन वर्ड्स between 0 to 9 and the number entered by the number must be entered by the user. The number must be entered by the user. Entered by the user. ठीक है, अब हम ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज को। पहले हम यूजर से कहेंगे enter any number. I'm just creating it fast. Listen carefully. Enter any number. अभी हम इसको any कर लेते हैं। Okay, so now if n is equals to 0, तो क्या प्रिंट हो जाए? 0। प्रिंट क्या हो जाए? 0। एलिफ अगर n 0 के बराबर नहीं है, n इक्वल्स टू 1, अगर n 1 के बराबर है तो प्रिंट क्या हो जाए? ONE1। क्या प्रिंट हो जाए? ONE1। वर्ड्स में प्रिंट करा रहे हैं हम। एलिफ n अगर 2 के बराबर है तो क्या प्रिंट हो जाए? 2। ठीक है, सिमिलरली हम सबके लिए बना सकते हैं, है ना। n इक्वल्स टू 3, n सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं। एलिफ n इक्वल्स टू 4,
तो प्रिंट हो जाए एलिफ n मॉडुलस 5 प्रिंट हो जाए ठीक है एलिफ n equals to 7 प्रिंट हो जाए फिर सेम we are going same 8 print और अगर एलिफ n equals to 9 करता है तो प्रिंट हो जाए 9 NINE 9 ओके। नाउ लिसन, अगर कोई 9 के बाद या 0 से कम करता है -1 या 99 करता है या 10 करता है तो हम उसके लिए एल्स कंडीशन रखेंगे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो ये चल जाए, एंड में हम एल्स देते हैं इनवैलिड एंट्री या इनवैलिड इनपुट। एंट्री की जगह इनपुट भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं चल रहा है कि नहीं। तो देखिए जरा, एलिफ के लिए हम बना रहे हैं एलिफ कंडीशन तो देखिए जरा, एंटर एनी नंबर 5 तो नंबर इज 5 प्रिंट हो रहा है। देखो जरा ध्यान से कैसे देखो, अगर किसी ने एंटर किया 9 तो 9 आउटपुट आएगा 9 NINE। अब कोई एंटर करता है 7 तो 7 आउटपुट आएगा, यू कैन सी, यू कैन चेक 7। अब कोई एंटर करता है क्या, सपोज मान लो किसी ने एंटर किया 10 के लिए इनवैलिड एंट्री, इनवैलिड इनपुट आएगा, ठीक है। तो यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, n की वैल्यू 2 है या n की वैल्यू 3 है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। जो भी कंडीशन n को सेटिस्फाई करेगी या जो भी वैल्यू इस कंडीशन को, जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वही स्टेटमेंट चलेगी। पहले तो इफ है, उसके बाद एलिफ है। इफ एलिफ को आप कितना भी कम या ज्यादा कर सकते हो, एंड में एल्स आता है। तो दिस इज द वे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलिफ। सो हम इसको एल्सिफ लैडर कहते हैं सी लैंग्वेज में, C++ में इसमें एलिफ है। तो एल्स और इफ को मिलाकर एलिफ बना है। नाउ व्हाट इज द मेन लॉजिक हियर? मेन लॉजिक ये है कि मल्टीपल कंडीशंस को हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजर रिस्पांस। यूजर जैसा इनपुट करेगा उसके बेस पर हम आउटपुट देंगे। अगर यूजर ने 1 एंटर किया तो दिस विल एग्जीक्यूट, और कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर सारी कंडीशन गलत हो जाती है, मान लो यूजर 0 to 9 कुछ भी एंटर नहीं करता, कुछ और एंटर करता है, तो एल्स में हमने क्या रखा है, इनवैलिड इनपुट। Now I hope you understood this program Elif। आगे समझ में सभी को? Yes sir। Okay, तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। We will continue tomorrow। Yes sir। Okay, thank you to all।